y3, s1, s2, s3। और इसके लिए वैल्यू तुम्हारे आ गए थे, यहाँ पे आए थे 1 y3, 1 y2, 0 s3। उसके बाद वैल्यू आए 1/10, 1/10, 1/5। नेक्स्ट y1 के वैल्यू आ गए थे 2/5, 11/15, नेक्स्ट 24/5। Next here you got the value 0, 1, 0. Next here you got the 1, 0, 0. Next here you got 3/20, -1/60, -1/5. Next here you got -1/10, 7/60, and -3/5. And the last value that you got is 0, 0, 1. यहाँ पे तुम्हारा CJ के वैल्यू जो रहेंगे वही 1, 1, 1, 0, 0, 0। उसके बाद ZJ का वैल्यू आया था 1/5। Next here it comes to be as 17/15. Here you will get 1, 1. Next here you will get 2/15. Next here you will get 1/15. Here you will get the value as 0. Next CJ minus ZJ का वैल्यू आ रहा है कितना? 2/15, 0, 0, -2/15, -1/15, 0. Check the value, everyone. Okay with the answer, everyone? Now, after getting these values, you have to do one thing. Now, since as you have said that, shall I proceed? सबका हो गया यहाँ तक लिख करके आगे का स्टार्ट करूं मैं? लिख रहे हो? हो गया सर। हाँ। Now, after this, now you have to find the solution for player A and player B both. Now, this solution is indicating for the player B. तो प्लेयर ए के सॉल्यूशन कहाँ पे आएंगे फिर? सिंस इज द डुअल सिंपलेक्स मेथड, प्लेयर ए के सॉल्यूशन तुम्हारे यहाँ पे आ जाएंगे S1, S2, S3 के कॉलम में। ठीक है, S1 रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ X1, S2 रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ X2, एंड S3 रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ X3। ठीक है, देयरफॉर तुम्हारा y1, y2, y3, y1 नहीं है यहाँ पे क्योंकि S3 है, तो y1 is 0, y2 is 1/10, y3 is 1/10। यहाँ पे x1 का वैल्यू 2/15, x2 का वैल्यू 1/15 और x3 का वैल्यू 0। लाइक दिस यू विल गेट द वैल्यू फॉर प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। ठीक है, लेकिन जो हमारा वैल्यू आ रहा है y1, y2, y3 और x1, x1, x2, दैट इज नॉट द रियल वन, दैट इज द कन्वर्टेड वन। क्योंकि y1 रिप्रेजेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ yi इज इक्वल टू qi अपॉन v, है कि नहीं? हम लोगों ने कन्वर्ट किए थे, हमें प्रोबेबिलिटी कौन से वैल्यू फॉर्म में चाहिए? qi के फॉर्म में चाहिए, तो कन्वर्शन हमें करना पड़ेगा। दूसरा x1, x2, x3 जो आ रहा है वो भी अपना वैल्यू रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि x1 इज इक्वल टू pi अपॉन v, डिवाइड किए थे, तो हम लोग पीआई के फॉर्म में फाइंड करने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा? वी का वैल्यू फाइंड करो और वी का वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें वैल्यू आएगा। ठीक है, नाउ देयरफॉर आफ्टर दिस राइट डाउन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर प्लेयर बी इज the optimum solution for player B is, what is that? y1 is equal to 0, y2 is equal to 1/10, y3 is equal to 1/10।
Okay, and value of the game is game will be equal to how much? Now Zj is equal to 1 by V is equal to 1 by 5. Therefore, that represent what? It will represent that V is equal to 5. That is, this value of the game come with respect to this converted one. ओरिजिनल वन का वापस रिवर्स में जाना पड़ेगा अपने को. ठीक है. After this, right? Now, this solution values are now converted back into the original values. Next, right? These solution values are now converted back into the original value. Okay, as I said, now how will get that value particular? Now, since I said getting the value of V is equal to 5, therefore now particularly with respect to that conversion, how will get? First of all, y1 से value find करो. y1 is equal to q1 upon v. This implies q1 is equal to y1 into v. That is equal to y1 is 0 into v is 5. Therefore, it will be equal to 0. y2 is equal to q2 by v. This implies q2 is equal to y2 into v. And that is equal to y2 कितना है? 1 by 10 into 5. That is equal to 1 by 2. y3 is equal to q3 by v. This implies q3 is equal to y3 into v. That is equal to 1 by 10 into 5. That is equal to 1 by 2. और वैल्यू ऑफ द गेम इसका क्या आएगा वो भी लिख लो. वैल्यू ऑफ द गेम विल बी इक्वल टू v माइनस कांस्टेंट, क्योंकि v तो ये डेटा के हिसाब से है तो उसका माइनस कांस्टेंट करना पड़ेगा. तो 5 माइनस कांस्टेंट कितना था? 4 था. तो 5 माइनस 4 विल बी वी कैन से एज 1. Therefore, you have to write down expected value of the game. After this, write down expected value of the game is equal to v minus constant, and that is equal to 5 minus 4 is equal to 1. ठीक है. ओके सबके? Yes, sir. Everyone? Priyanka, Rohit? Yes, sir. After this, write down expected value of the game. मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर का पार्ट मुझे लगने वाला है. प्लेयर बी का हमने फाइंड किया. अनएक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गेम लिख लिया. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गेम that is equal to 5 minus constant, that is equal to 5 minus 4 is equal to 1. ठीक है. दिस वाज देयर विथ रेस्पेक्ट टू प्लेयर ए. अब प्लेयर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड करना है. तो प्लेयर बी के लिए कैसे फाइंड करेंगे? नेक्स्ट आइटम, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए. द ऑप्टिमम strategy for player A are obtained from Cj minus Zj rules
of the last table or optimal table. Okay, that is here. You have changed the value. Negative sign should be converted to positive. Okay, therefore that means from that you will get x1 is equal to 2 by 15, x2 is equal to 1 by 15, x3 is equal to 0. Now same way, find the value of p1, p2, p3. कर लोगे? Obtain the value of p1, p2, p3. सर बोलो. P1 2/3, p1 2 by 3. Okay. P2 1/3, बराबर है. P3 0. सबका आया? अरे ये तो गैप होते जा रहे हैं. रोहित आया क्या? चलो. Now after that, after getting the value of p1, p2, p3, you have to write the final solutions, right? And the probabilities of using strategy by both the players are. Now write the final probability then. ना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, हर सबको सिंपलेस्ट मेथड में इशू रहता है, फिर भी लेक्चर को किसी को आना नहीं है. सर बोलो. सेम 3 का रिजल्ट कब आएगा? सेम 3 का आएगा ना अभी. देखो कॉलेज से नोटिस आएगा. कुछ मालूम नहीं पड़ा. नहीं सर. लगाएंगे. Okay, write on the final step. Hence, the probability of using strategy by both the players are, and therefore the player A का probability क्या है? That you have obtained. That is now only obtained. 2 by 3, 1 by 3, 0. Player B का strategy probability क्या आ रहा है? पहला था 0, 1 by 2, 1 by 2. Next, value of the game. That is equal to 1. That is your final answer. इतना सारा कन्वर्शन करके आंसर सॉल्व करना पड़ेगा. इफ यू आर नॉट गेटिंग द सैडल पॉइंट एंड द प्रॉब्लम इज कंसिस्ट ऑफ यू आर सॉल्विंग बाय यूजिंग एलपीपी मेथड. सर तो 10 मार्क्स करेगा ना सर क्वेश्चन इतना बड़ा है तो? हाँ आराम से. ऑफलाइन एग्जाम अगर हुआ तो एटलीस्ट 10 मार्क्स तो रहेंगे ही. सर किसके चांसेस है ऑफलाइन होने के या फिर ऑनलाइन होने के? वो तो कॉलेज वाला ही बताएंगे. दोनों के चांसेस हैं. ओके. क्योंकि सिचुएशन जो हिसाब से कंट्रोल हो रहा है ऑफलाइन हो सकता है. दूसरा डिस्कशन ये चल रहा है कि अगर अब तक ऑनलाइन चल ही रहा है तो बीच में ऑफलाइन लेने जाएंगे तो सारे चीजें वापस एडजस्ट करना, बच्चे लोग का एडजस्टमेंट, कोई घर पे है कोई कहीं और है, सारे को मोटिव चेंज करना. वो अभी तक ऐसा सब लोग एडजस्टेबल हो गए हैं ऑनलाइन के. ये सेमेस्टर ऑनलाइन ही ले लेना चाहिए, ऐसा भी चल रहा है डिस्कशन. देखो लास्ट में क्या करते हैं. या फिर वो चाहेंगे तो FY SY को ऑफलाइन ऑनलाइन लेकर के TY वाले को ऑफलाइन ले ले, क्योंकि लास्ट ईयर है. पता नहीं क्या करेंगे. सारे उनके हाथ में. जो गाइडलाइन आएगा अभी तो फरवरी स्टार्ट होने वाला, अभी तो जनवरी एंडिंग पे टाइम है. ऐसे भी उन्होंने सेमेस्टर का डिक्लेरेशन कर दिया कि 31 मई तक सेमेस्टर जाने वाला है. सेमेस्टर 4 कब तक होगा? हाँ सेमेस्टर 4 कब तक होगा? सेमेस्टर 4 मई तक जाएगा. तुम्हारा एग्जाम मोस्टली मई में ही होगा. चांसेस है. अभी ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा नहीं बोल सकते, लेकिन मई में जाएगा.
क्योंकि अभी तो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, अभी जनवरी से स्टार्ट हुआ मतलब है, क्योंकि उनका भी कैलकुलेशन रहता है ना, दैट मीन नंबर ऑफ वर्किंग डे होना चाहिए, अकाउंट करके चल रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। ओके, नाउ टेल मी दैट वेदर यू हैव एनी डाउट इन गेम थियरी। कोई टॉपिक का इशू है जो समझा नहीं, कुछ पूछना है? Because you don't have any doubt, then I can declare that I have completed one unit. सर 1 यूनिट हो गया। हाँ, थ्योरी छोटा है, अच्छा अच्छा। इसलिए तो पहला स्कूल लिया मैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब वेटेज उतना ही रहता है यूनिट्स का, मोस्ट प्रॉब्ली। वही हिसाब से नो तुम्हारा डाउट सर। कंसंट्रेशन, प्रिपरेशन देख लो क्या है कंडीशंस। किसी को रहेगा कुछ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर। अरे क्या करना, ठीक है। ठीक है, विंडो वन थी। Okay, take one example for practice then. Based on this LPP, is it okay? ओके सर। चलो, कल के लिए नया टॉपिक क्या चालू करें? एक प्रैक्टिस एग्जांपल ले लो। हम्म write down player A, A1, A2, A3, player B, B1, B2, B3, और तुम्हारा वैल्यूज है 1 -2 1, उसके बाद -1 3 2, उसके बाद -1 -2 3, all this by using LPP. तो सैडल पॉइंट पहले चेक करना है ना। हम्म तो डज नॉट एग्जिस्ट सर। does not exist, then take the most negative value, convert it to the positive. सर +3 करेंगे ना। +3 करना पड़ेगा, हाँ। +3 करके सॉल्व करो। रोहित, पढ़ाई चल रहा है कि नहीं? हाँ रोहित, क्या कंडीशन है? तो करो ना प्रैक्टिस, छूट क्यों जाते हैं लेक्चर? घर बैठे के इतना बिजी रहते हो, कॉलेज भी आना नहीं, जितना आना जाने का टाइम लगता है उतना में तो तुम्हारा लेक्चर हो जाते हैं, फिर भी अटेंड नहीं कर पाते हो। थोड़ा सीरियस हो जाओ, नहीं तो नेक्स्ट ईयर कॉलेज चेंज करना ना। क्या सब्जेक्ट है तुम्हारा इस टाइम? मतलब नेक्स्ट ईयर फिजिक्स लेना है कंफर्म? कंफर्म नहीं रहेगा तो फिर कैसा चलेगा, ये हालत रहा तो दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएंगे?
तो सर हाँ बोलो। मैथमेटिक्स अगर चाहिए रूपारेल में तो मिलेगा एडमिशन? डिपेंड करता है कॉलेज का कंडीशन क्या है, मतलब उनका इन हाउस कितना सीट है, कितना को ले रहे हैं, उसके बाद फिर वो अपना पहला देखेंगे कंडीशन क्या है, एक्स्ट्रा बच्चे हो रहे कि बच्चे कम है, और फिर तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा, तुम्हारा रिजल्ट क्या आया है, वो हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। ओके सर। मोस्टली रिफरल में चांसेस कम हो जाते हैं, उनका इन हाउस ही बच्चे बहुत रहते हैं, तो लास्ट में उनको एक आधा स्टूडेंट अगर उनका हो सकता है मैथ्स को कम प्रीफर किया, स्टैट्स में चला गया या फिजिक्स में चला गया, सीट थोड़ा कम ज्यादा है, तो दे देते हैं। बाहर के बच्चे लोग के लिए बोल नहीं सकते। तुम्हारा ट्वेल्थ में कितना कैसा रिजल्ट था? किसका सर? तुम्हारा? सर मेरा 55% था। हम्म। तो दूसरे कॉलेज में पहले ही मतलब नेशनल में ट्राई किए थे कि दूसरे कॉलेज में ट्राई किए थे एडमिशन के लिए? नहीं नहीं ट्राई किया था सर। वही गलती किया ना, जब तुम्हें मैथ्स या स्टैट्स में जाना था तो दूसरा कॉलेज देखना चाहिए था अपने को पहले, या फिर कम से कम फर्स्ट ईयर होने के बाद तो ट्राई करने को देखना चाहिए था। सर फर्स्ट ईयर के बाद सर लॉकडाउन हो गया ना। वो भी एक इशू हो गया तुम्हारा, क्योंकि ऐसा मोस्टली टीवाई नहीं रहने की वजह से प्रॉब्लम होता है लास्ट ईयर में बहुत, मतलब अच्छे कॉलेजेस मिलना या फिर वही सब से। ठीक है कि नहीं भी मिला रूपा है ना, तो इशू नहीं है कौन से, मतलब कीर्ति भी मिला कहीं भी मिला, तो सिचुएशन वही रहता है लास्ट में, प्रिपरेशन अपना रहता है, टीचर वैसे ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कॉलेज है तो दूसरा कुछ है। ना टेंशन लेने का नहीं, पढ़ना अपना है, कहीं भी रहेंगे तो पढ़ लेंगे, जहां मिलेगा वहां फिर ले लेने का टीवाई में, ज्यादा सोचने का नहीं। यस सर। मैथ्स के लिए जाना हो तो देखने का मैथ्स के लिए कौन सा कॉलेज इसमें है, कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, या फिर मैम से बात करने का हो सकता है, मैम का कहीं कंसल्ट वगैरह रहेगा तो। सर से पूछा था तो राजेश सर बोल रहे थे मिडी भाई। देखो हाँ वही बोला, जहाँ पे उनका सेटिंग थोड़ा रहता है कि हाँ हमारे बच्चे इतने आएंगे, वही सब से उनका थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं कीर्ति में जाना, क्योंकि शायद से स्टैट्स वाले तो सारे कीर्ति मिल जाते हैं, बहुत से बच्चे अपना। लास्ट ईयर अनीश वगैरह थे, एक दो जन गए हैं शायद से कीर्ति में। मीठी भाई बोला था, अच्छा है, मीठी भाई भी खराब नहीं है। वहाँ पे तो पीजी वगैरह भी आगे चल के भी, मतलब अगर मान लो मीठी भाई में जाने के बाद शायद से एमएससी भी है ना मीठी भाई में। यस सर एमएससी तो रूपारेल में भी है ना सर? नहीं नहीं नहीं, एमएससी नहीं है रुपर में, मैथ स्टैट्स को नहीं है, फिजिक्स नहीं है? में है। नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में शायद से है। अच्छा खालसा में मतलब है, फिर खालसा भी बोल रहे थे सर। हाँ, वैसा वही पीजी करना रहेगा तो बेनिफिट हो जाए, मान लो बाई चांस तुम्हारा ठीक है ग्रेजुएशन में परसेंटेज 19-20 हुआ और यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो केस में प्रेफरेबल हो जाता है फिर, सेम कॉलेज रहेगा तो, वैसे तो मीठी भाई वगैरह देखने का, मीठी भाई ठीक है। ओके सर। बाकी प्रियंका को क्या करना है? सर अभी कंफ्यूजन। क्या चीज के सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, फिजिक्स स्टैट्स? मैथ और स्टार्ट सर। मैथ स्टैट्स में हो तो फिर और ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, पहला नंबर तो केटी क्लियर कर लो। ये सर इस बार हाँ 100% करना ही है। हाँ, ऐसे हालत रहे ना तो फिर मुश्किल है पास होना। पास होना क्या, पास ठीक है एसवाई तुम पास हो जाओगे, लेकिन एडमिशन मिलने में तुम्हें तकलीफ होगी। ठीक है, सारे टॉपिक गो थ्रू कर लो, गेम तेरे की भी देखो, कोई टॉपिक नहीं समझा जिसका प्रोसीजर में कुछ कंफ्यूजन है तो हम डिस्कस कर लेंगे कल, नहीं तो फिर नेक्स्ट थर्ड यूनिट चालू कर देंगे डिसीजन थियरी। ओके सर। और रहा सवाल प्रैक्टिकल, देखते हैं फिर नेक्स्ट वीक से प्रैक्टिकल भी चालू करते हैं, क्योंकि गेम थ्योरी पूरा यूनिट पे एक प्रैक्टिकल रहेगा। देखिए डिसीजन थ्योरी पे क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिकल कैसे अपना ड्यूरेशन मिल नहीं रहा ऑनलाइन होने की वजह से, अभी एक लेक्चर में क्या प्रैक्टिकल लेंगे, और सिलेबस भी कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बार अपना पेपर ऐसा है कि अगर मान लो प्रैक्टिकल हम नहीं भी लेते तो क्लास में एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल तो हर एक टॉपिक पे कर ही लेते हैं, उतना इफेक्ट नहीं होगा।
यस तो पहले अपना सिलेबस को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि मान लो फॉर एग्जाम्पल गेम थ्योरी, तो गेम थ्योरी का हर एक टॉपिक पे तो एग्जाम्पल हो ही गए हैं, तो प्रैक्टिकल लेंगे भी तो वही एग्जाम्पल मिलेंगे सिर्फ प्रैक्टिस करने को, नहीं इश्यू नहीं होंगे। इसके लिए पहले बाकी चीजें सिलेबस पर कवर अप करेंगे, देखते हैं उसके बाद फिर देखते हैं प्रैक्टिकल क्या करना है, कैसे तब तक सिचुएशन क्या आता है फेवरेबल, नहीं तो हो सकता है कॉलेज वगैरह चालू करते हैं, क्या करते हैं।